औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, हम पढ़ रहे हैं जूलियस सीज़र। आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4। जूलियस सीज़र के बारे में हमने पढ़ा कि वो एक रोमन सोल्जर, एक वहाँ का कमांडर और एक ब्रेव सोल्जर था जो रोम में बड़ा मशहूर था और वो रोम का बादशाह बनने वाला था। मगर वहाँ पे कुछ लोगों ने उसके खिलाफ़ साजिश की और वो उसको कैपिटल में बुला के, टाउन हॉल में बुला के दिन दहाड़े लोगों के सामने उसका कत्ल कर दिया और उसके कत्ल में उसका दोस्त भी शामिल था। तो हमने ये भी देखा कि जूलियस सीजर जब उसका फ्यूनरल हो रहा था तो लोगों में बड़ा टेंशन था, उनमें डर था, उनमें कन्फ्यूजन था कि ये क्या हो गया। और जूलियस सीजर के जो दोस्त थे जिनका नाम था ब्रूटस, उनने लोगों को दिलासा दिया, उनको एक्सप्लेन किया कि मैंने जूलियस सीजर को क्यों कत्ल कर दिया। उसने कहा कि मैंने जूलियस सीजर को इसलिए कत्ल कर दिया कि मैं रोम को बचा सकूं। तो उसने साथ में ये भी कहा है कि जिस तलवार से मैंने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया, और कभी अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि रोम जो है वो ख़तरे में है, तो मेरी वजह से अगर रोम ख़तरे में कभी हुआ तो मेरे लिए भी मेरी अपनी ही तलवार हाजिर है और मैं अपने आप को इसी तलवार से ख़त्म कर दूंगा, यानी कि कत्ल कर दूंगा। तो उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, दिस मूड द पीपल टू एडमिरेशन एंड दे चीयर्ड ब्रूट्स। नाउ मार्क एंटनी रोज टू स्पीक। तो इस जज्बाती तकरीर से लोगों के दिल में थोड़ी सी शांति आई। उन्होंने ब्रूट्स को एडमायर किया, उसकी तारीफ़ें की और उन्होंने ब्रूट्स को चीयर किया, उसको उसकी तारीफ़ें की। अब मार्क एंटनी खड़ा होता है। अब वो क्या लोगों से कहता है, उसने अपनी तकरीर शुरू की। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। आई कम टू bury Caesar, not to praise him. The evil that man do lives after them. The good is often buried with their bones, so let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. I have come with Brutus's permission to speak at Caesar's funeral. Caesar was my friend, faithful and true to me, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Caesar was always kind and generous to the poor. He always felt great love and pity for them. Surely ambition should be made to harsher stuff, but Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. Yesterday at the games, you all saw me offer him a kingly crown, which he 3 times refused. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. And now the Romans, moved by his words, began to turn against Brutus. There is truth in what Antony says. They said to each other, Caesar has been greatly wronged. Remember, he would not take the crown, therefore it's certain he was not ambitious. Antony went on to say that he could stir their hearts to hatred and anger, but he pretended that he did not wish to do so, because I should wrong the man, honorable men whose words have killed Caesar. The people, now wholly on his side, shouted, Honorable men, they were wicked murderers. And Antony spoke again. If you have tears, prepare to shed them now. He showed them Caesar's cloak, torn by the swords of men whom he had thought were his friends. See what a rent the envious Cascamede, cried Antony, and here the well beloved Brutus struck. This was the unkindest cut of all. You know how dearly Caesar loved him, and when he found the Brutus was unfaithful, his great heart broke. The people cried, O noble Caesar,
Oh, most bloody sight! We will be revenged. Shouting for revenge, they rushed out of the marketplace in search of Caesar's murderers, and Mark Antony was well satisfied. This part, this first part of his plan had worked. तो अब जो मार्क एंटनी है, जूलियस सीजर का दोस्त, वो खड़ा होता है और वो लोगों से खिताब करता है, लोगों से बात करता है, वो लोगों की तरफ वो अपना स्पीच दे रहा है। वो कह रहा है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। उसने कहा, दोस्तों, मेरे साथियों, रोम के रहने वालों और मेरे देश के रहने वालों, अपने कान मेरी तरफ लगा के रखो, अपने मेरी बात बड़े गौर से सुनो। आई कम टू बैरी सीज़र, नॉट टू प्रेज हिम। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मैं सीज़र को यहाँ पे उसके जनाजे में शरीक हो सकूँ, न कि उसकी तारीफ़ें यहाँ पे मैं करने के लिए आया हूँ, मैं उसको दफनाने के लिए आया हूँ। द एविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम। लोग अगर कुछ बुरा काम करते हैं तो वो उनके मरने के बाद भी उनके साथ रहता है। द गुड इज़ ऑफन बैरिड विद देयर बोन्स। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, उनकी अच्छाई भी उनके मरने के साथ ही उनके साथ दफन हो जाती है। सो लेट इट बी विथ सीज़र। चलो, यही हाल हम सीज़र के लिए भी हम यही मांगते हैं कि अगर उसने अच्छा किया होगा, वो उसकी लाश के साथ दफन हो जाए, और अगर उसने बुरा किया होगा तो वो उसके मरने के बाद भी कायम रहे। He paused and looked sorrowfully at the Roman people. उसने वो रुका और उसने बड़े गमगीन अंदाज में अपने इन रोम के लोगों की तरफ देखा। एंड देन वेंट ऑन, और उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। द नोबल ब्रूट्स हैज़ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। ये जो हमारे अजीम ब्रूट्स साहब हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि सीजर एम्बिशियस था, वो बादशाह बनना चाहता था। इफ़ दिस इज़ सो, देन इट वाज अ टेरेबल फॉल्ट। अगर ब्रूट्स की बात सही है तो ये बहुत बड़ी खतरनाक गलती जूलियस सीजर ने की है, उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड टेरेबली है सीजर आंसर्ड फॉर इट। और सीजर को फिर अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। आई हैव कम विद ब्रूट्स परमिशन टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल। मैं यहाँ पे आया हूँ ब्रूट्स की परमिशन लेके सीजर के फ्यूनरल पे आपसे, सीजर के जनाजे पर आपसे बात करने के लिए मैं ब्रूट्स की परमिशन से यहाँ पे आया हूँ। सीजर वॉज माई फ्रेंड, फेथफुल एंड ट्रू टू मी। सीजर जो था वो मेरा दोस्त था, बहुत ही वफादार और बहुत ही सच्चा दोस्त था वो। बट ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशियस। मगर ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, उसको बादशाह बनना था। एंड ब्रूटस इज़ एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है, ये झूठ नहीं कह सकता है। सीजर वॉज ऑलवेज काइंड एंड जनरस टू पुअर। अब जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी बात है, मेरे ख्याल से सीजर हमेशा बहुत ही रहमदिल था, और लोगों के साथ उसका ताल्लुक जो था वो बड़ा ही रहम वाला ताल्लुक हुआ करता था। ही ऑलवेज फेल्ट ग्रेट लव एंड पिटी फॉर देम। वो गरीब, कमज़ोर और हाजतमंद लोगों के लिए बड़ा प्यार रखता था, और उनके साथ बड़ी हमदर्दी से पेश आता था। श्योरली एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ हार्सर स्टफ। और मेरे हिसाब से अगर कोई एम्बिशन रखता है, ऐसा कोई एम्बिशन रखता है, तो उसके साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। तो बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। और अब ब्रूटस कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, हालांकि मेरे नज़दीक उसकी कोई एम्बिशन नहीं थी। उसकी सिर्फ एम्बिशन यही थी कि वो लोगों की मदद करे, गरीबों के काम आए, दुखी लोगों के काम आए, उनके साथ रहमदिली का सलूक पेश करे। मगर अब ब्रूट्स कह रहा है कि वो एम्बिशियस था, और एंड ब्रूट्स इज़ एन ऑनरेबल मैन। और एक ब्रूट्स झूठ नहीं कह सकता है, क्योंकि वो एक ऑनरेबल मैन है। अब जहाँ तक मैं आपको एक और बात बताऊं कि यस्टरडे एट द गेम्स यू ऑल सॉ मी ऑफर हिम ए किंगली क्राउन। और कल जो हमारे यहाँ पे नेशनल गेम्स चल रहे थे, वहाँ पे आपने देखा कि मैंने इस जूलियस सीजर को 3 बार ये क्राउन पेश किया, विच ही 3 टाइम्स रिफ्यूज। उसने 3 बार इसको ठुकराया, उसने कहा कि मुझे बादशाह नहीं बनना है। वॉज दिस एम्बिशन, क्या इसी को हम एम्बिशन कहते हैं कि वो ठुकरा दे अपने इस ताज को, इस बादशाह को ठुकरा दे। येट ब्रूट सेज ही वॉज एम्बिशियस। अब ब्रूट्स
फिर से कह रहा है कि वो एम्बिशियस था। हाँ, कि हालांकि आप लोगों ने कल देखा होगा कि उसने ताज जो उसको हमने पेश किया था उसको ठुकरा दिया है उसने, मगर ब्रूट्स कह रहा है कि वो एम्बिशियस था एंड ब्रूट्स इज़ एन ऑनरेबल मैन। अब ब्रूट्स एक ऑनरेबल मैन है, इसकी बात को हम ठुकरा भी नहीं सकते हैं। एंड नाउ द रोमन्स मूव्ड बाय हिज वर्ड्स बिगैन टू टर्न अगेंस्ट ब्रूट्स। अब जो रोमन्स थे उस उनके दिल में ये, उनके दिमाग में ये बात समझ में आ गई, इसकी जज्बाती तकरीर समझ में आ गई, उनको ये बात समझ में आ गई कि ब्रूट्स झूठ बोल रहा है, और वो अब ब्रूट्स के खिलाफ हो गए। देयर इज ट्रुथ इन वट एंटनी सेज दे सेड टू ईच अदर। वो अब एक दूसरे को क्या कह लेंगे, यार ये जो मार्क एंटनी कह रहा है वो तो बिल्कुल सही कह रहा है। सीजर हैज़ बीन ग्रेटली रॉन्ग्ड। सीजर पे गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं। रिमेंबर ही वुड नॉट टेक द क्राउन। आप लोगों के सामने ही तो, हमारे सामने ही तो कल उसको ये क्राउन दिया गया था, मगर उसने ये क्राउन लिया ही नहीं। देयरफॉर इट इज़ सर्टन दैट ही वॉज नॉट एम्बिशियस। और ये बात हमें बिल्कुल अब यकीन के साथ हमें ये समझ में आ गई कि सीजर को बादशाह बनने की कोई एम्बिशन नहीं थी। एंटनी वेंट ऑन टू से दैट ही कुड स्टिर देयर हार्ट्स टू हार्टेड एंड एंगर। तो एंटनी ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि यार, उसने कहा कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों के दिल में नफ़रत बढ़ा सकता हूँ, मैं आप लोगों के दिल में गुस्सा भर सकता हूँ, बट ही प्रिटेंड दैट ही डिड नॉट विश टू डू सो। और उसने कहा कि मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज आई शुड रॉन्ग द ऑनरेबल मैन हुज स्वर्ड्स हैव किल्ड सीजर। क्योंकि मैं उन लोगों को ये उन लोगों को गलत ठहराना चाहता हूँ जिन्होंने सीजर को धोखे से मारा है। द पीपल नाउ होली ऑन हिज साइड। अब जो सारे लोग थे, अब सारे मार्क एंटनी के साइड में थे। उनको ये समझ में आ गया था कि ब्रूट्स ने इसको गलत इल्ज़ाम लगा के कत्ल कर दिया है। शाउटेड ऑनरेबल मैन दे वर विकेड मर्डर्स। उन्हें अब नारे लगाए, कौन से ऑनरेबल मैन है ये, क्या ऑनरेबल मैन है ये कोई ऑनरेबल मैन नहीं थे, ये जालिम और जालिम कातिल थे ये। एंड एंटनी स्पोक अगेन। अब एंटनी ने इस अपनी बात को और आगे बढ़ाया, लोगों के गुस्से को और भड़काया। उसने कहा इफ़ यू हैव टीयर्स प्रिपेयर टू शेड देम नाउ। उसने लोगों को कहा, ए लोगो, अगर तुम रोना चाहते हो, अगर तुम्हारे दिल में रोने की तड़प है, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो वो अब बहाने के लिए तैयार हो जाओ। क्यों? ही शोड देम सीजर्स क्लोक। उसने वो चादर या वो कोट जो सीजर ने पहना हुआ था वो लोगों को दिखाया। उसमें क्या था? टॉर्न बाय द स्वर्ड्स ऑफ मैन whom he had thought were his friends। अब वो जो उसका जो क्लोक था, उसका जो कोट था, या उसकी जो चादर जो उसने अपने इर्द गिर्द लपेटी हुई थी, वो तलवार के वारों से फट चुकी थी, जगह जगह से वो फट चुकी थी। उन लोगों की तलवारों से फट चुकी थी जिनको सीजर ये समझ रहा था कि वो उसके दोस्त हैं। सी वट आई रेंट द एनवियस कैस्का मेड, क्राइड एंटनी। उसने लोगों को ये चादर दिखाई और कहा, देखो ये वो गाँव है जो इस कैस्का ने जूलियस सीजर पे किया था, ये उस गांव का निशान है, उस तलवार का निशान है। एंड हेयर द वेल बिलावड ब्रूट्स अटैक। और ये जो बड़ा सा आपको ये यहाँ पे निशान लग रहा है, बड़ा सा ये कट लग रहा है आपको इस चादर में, ये जूलियस सीजर के दोस्त ने, जिसका नाम ब्रूट्स है, उसने ये वाला कट लगाया था। दिस वॉज द अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। और ये जो ये वाला ज़ख्म था, ये जो ये वाला घाव था, ये बहुत ही खतरनाक घाव साबित हुआ। किसके लिए? जूलियस सीजर के लिए। यू नो हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम। तुम लोगों को पता है, ए लोगों, तुम लोगों को पता है कि जूलियस सीजर कितना प्यार करता था ब्रूटस के साथ। एंड व्हेन ही फाउंड दैट ब्रूटस वाज अनफेथफुल हिज ग्रेट हार्ट ब्रोक। और उसको जब ये पता लगा कि जूलियस सीजर को जब ये पता लगा कि उसका बहुत ही करीबी और प्यारा दोस्त ब्रूटस भी उसके खिलाफ है, तो उसका दिल उसी वक्त टूट गया और वो उसी गम से उसी वक्त मर गया। द पीपल क्राइड, ओह नोबल सीजर, ओह मोस्ट ब्लडी साइट, वी विल बी रिवेंज। लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय हमारा सीजर, हाय हमने ये क्या कर दिया, ये सीजर के साथ क्या हुआ, सीजर हम तुम्हारा बदला लेंगे। शाउटिंग फॉर रिवेंज दे रश्ड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डर्स। वो ये नारे लगाते लगाते इस मार्केट प्लेस से बाहर निकल गए और गुस्से से उन लोगों को ढूंढने लगे जिन्होंने सीजर को कत्ल कर दिया था। एंड मार्क एंटनी वॉज वेल सेटिस्फाइड। और मार्क एंटनी के दिल में ये सेटिस्फैक्शन हो गया कि उसने
अच्छी तरह से लोगों के दिल में ये बात पहुंचा दी। द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैड वर्कड, जो उसका पहला पार्ट था उसके प्लान का, वो बड़ी अच्छी तरीके से उसने अपना काम कर दिखाया था। तो दिस वाज फोर्थ पार्ट आई गेस ऑफ दिस लेसन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे जूलियस सीजर का फिफ्थ और आखिरी पार्ट। खुदा हाफिज़।